السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدً و مصلیًا اما بعد۔ عزیز طلباء طالبات، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آئی پلس اکیڈمی میں۔ بچوں، آپ نے ابھی تک روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معانی اور مطلب پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے اور یاد کر رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جو بھی الفاظ پڑھ چکے ہیں وہ یاد کر لیے ہوں گے، آپ استعمال کر رہے ہوں گے، اور چند الفاظ اور رہ گئے ہیں جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ جو بیماریوں کے تعلق سے ہیں۔ بیمار جو ہوتے ہیں، بیماریوں کے جو نام وغیرہ ہوتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، تو بیماریوں کے تعلق سے کچھ نام ہم جو ہے لکھتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ جو ہے لکھتے رہیے اور پڑھتے رہیے۔ تو یہاں پہلے ہم ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں، بیماریوں کے نام۔ آپ بھی میرے ساتھ لکھتے رہیے۔ تو بیماریوں کے نام۔ آج کا درس ہم جو شروع کر رہے ہیں، بیماریوں کے متعلق کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں، تو بیماریوں کے نام۔ اس میں آپ بیماری یا تکلیف کے لیے جو الفاظ آتے ہیں ان میں دیکھیں، وجعن ایک لفظ آتا ہے، وجعن۔ وجعن کے معنی ہوتے ہیں درد، تکلیف۔ وجعن درد، تکلیف۔ اس کی جمع آتی ہے اوجاعن۔ پڑھتے رہیے اور لکھتے بھی رہیے۔ وجعن درد، تکلیف، جمع اوجاعن۔ اسی طریقے سے بیماری میں آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ درد سر بہت مشہور ہے۔ درد سر کے لیے صداع لفظ آتا ہے، صداع، ہیڈ ایک جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ تو صداع معنی ہوتے ہیں درد سر، درد سر۔ اسی طریقے سے بخار کی بیماری آپ سنتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے انسان کو جو ہے درد سر کے ساتھ بخار کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حما۔ حما، تو یہاں کھڑا زبر رہے گا، میم پہ زبر، یہاں پہ کھڑا زبر۔ حما، حما مانے بخار۔ اس میں انسان جو ہے بہت پریشان ہوتا ہے۔ حما یہ ایک ایسی بیماری ہے، کبھی تیز بخار ہو جاتا تو آدمی جو ہے کانپنے لگتا ہے، بلکہ کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حما یہ جو ہے بہت مشہور ہے، حما بخار۔ اس کو اگر جمع استعمال کریں گے تو اس کے لیے آتا حمیاتن۔ اس کی جمع آپ اگر استعمال کر رہے ہیں تو حمیاتن اس کی جمع استعمال ہوتی۔ ایسے ہی زکام ایک بیماری ہے، آپ اردو میں بھی زکام ہی بولتے ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے زکامن، یہ بیماری جو ہے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں زکام۔ تو زکام جو ہے جس میں ناک جام ہو جاتی ہے، پانی بہنے لگتا ہے، تو زکام یہ بیماری جو ہے عام طور پہ اردو میں بھی ہم زکام ہی بولتے ہیں۔ ہاں، ایسے کھانسی، کھانسی کے لیے الگ لفظ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سعال، سین عین، سعالن۔ سعالن، سعال کے معنی ہوتے ہیں کھانسی۔ کھانسی کی تکلیف اگر ہے تو اس کو کہتے ہیں سعال، سعال عین سے سعال، سعالن کھانسی۔ اسی طرح اگر کہیں سوجن ہے تو اس کے لیے ورم، یہ لفظ جو ہے اردو میں ہم بولتے ہیں ورم آ گیا، تو ورمن معنی ہوتے ہیں سوجن۔ یہ عربی میں بھی ہے اور ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ دیہاتوں میں بھی آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ورم آ گیا، یعنی سوجن آ گئی کہیں جسم کے کسی حصے میں۔ تو یہ لفظ جو ہے بھی بہت مشہور ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اور ساتھ ہی ہم عربی میں، تو وہ لفظ صحیح ہے۔ تو ورمن معنی ہوتے ہیں سوجن، یعنی جسم کا کوئی حصہ جہاں پہ سوجن آ جائے، پھول جائے یا اونچا ہو جائے، تو اس کو ورم کہتے ہیں، ورمن، سوجن۔ ہاں، اس کی جمع بھی آتی ہے اورامن۔ اکثر بیماریوں میں جمع نہیں آتی ہے، یہ کچھ الفاظ ہیں جن میں آپ جمع پائیں گے، جیسے حما میں حمیات آپ ابھی لکھے، ایسے ہی ورمن کی جمع اورام آتی ہے۔
जख्म अगर है, कहीं कट गया, जख्म हो गया, तो उसके लिए आता है जरहुन। जरहुन मानते हैं जख्म। ये जख्म जो है कहीं भी हो तो उसको जरहुन, जरह तादील, वैसे एक फ़न भी है जिसमें इंसानों की खामियां, कमज़ोरियां बयान की जाती हैं। तो जरह के माने होते हैं ज़ख्म। इसकी जमा आती है जुरूहुन और जराहुन। तो यहाँ जुरूह लफ्ज़ जो है बहुत मशहूर है, आप लिख लीजिए जुरूहुन। जुरूहुन, जुरूहुन बहुत मशहूर लफ्ज़ है। तो जरहुन ज़ख्म जमा जुरूहुन। ऐसे हुरक़तुन, यहाँ देखिए किताब में एक नुक्ता छूट गया है, हुरफ़तुन लिखा है, हालांकि हुरक़तुन चाहिए, हुरक़तुन। तो लिखिए आप हुरक़तुन। हुरक़तुन माने होते हैं सोजिश, जलन। हुरक़तुन सोजिश या जलन, जिसमें कहीं कहीं होता है इंसान को जैसे लगता है जलन पैदा हो जाती है, तो उसके लिए हुरक़तुन, अरबी में हुरक़तुन बोलते हैं उसको। और इसके लिए अगर जमा इस्तेमाल करें हुरक़ात आ जाएगी। और बीमारियों में कोई जमा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सिंगल ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चेचक एक बीमारी है, तो इसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल जोदरीयुन। यहाँ आपकी किताब में थोड़ा मिस्टेक है, ज़बर के साथ लिखा हुआ है, तो आप इसकी इस्लाह करने, जदरीयुन लिखा है तो आप इसको जोदरीयुन, जीम पे पेश और दाल पे ज़बर, रे पे ज़ेर, जोदरीयुन। जोदरीयुन माने होते हैं चेचक। अभी ये बीमारी नहीं पाई जाती है आमतौर पे, पहले बहुत मशहूर ये बीमारी थी। अलबत्ता इससे चेचक के मुकाबिल में एक बीमारी आती है खसरा, जिसको बोलते हैं, छोटी चेचक उसको कहते थे पहले। अभी वो बीमारी पाई जाती, कभी कहीं इसकी वबाई बीमारी फैलती है, तो उसको कहते हैं खुसबतुन। यहाँ खुसबतुन लिख दिया है, आप वहाँ नुक्ता यहाँ भी ज़्यादा है, तो यहाँ खुसबतुन आप लिख लीजिए, इसको कहते हैं खुसबतुन। यहाँ लिखिए खुसबतुन। तो खुसबतुन के माने होते हैं खसरा। ये खसरा जो है चेचक ही की तरह ये भी बीमारी होती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं पूरे जिस्म में, और बेचैनी और तकलीफ में आदमी मुब्तला हो जाता है। तो खुसबतुन उसको कहते हैं खसरा। खुसबतुन की जमा खुसबात आएगी। यहाँ जमा अलिफ ते लगा के बहुत सारे अल्फाज के लिए जैसे मनाते हैं, वैसे इसमें भी खुसबातुन आ जाएगी। हाँ, आप एक उर्दू में भी सुनते होंगे बीमारी, इसहाल की बीमारी। इसहाल कहते हैं दस्त की बीमारी होती है, तो दस्त आने को कहते हैं अरबी में इसहाल। दस्त आना यानी एक बीमारी है इसहाल। बहुत ज़्यादा इंसान को जो तकलीफ होती है कभी कभी इसहाल की बीमारियों में। हाँ, इसी तरह कभी कभी ज़रूरत पड़ती है आदमी को दस्त नहीं हो, कभी कभी आदमी को कुछ ऐसी तकलीफ पेट में हो जाती है कि दस्त ही नहीं होता, अंदर जमा रहता है, तो उसके लिए मुस्हिल एक दवा आती है, दस्तावर दवा के लिए लफ्ज़ आता है मुस्हिलुन। इसी इसहाल से बना है मुस्हिलुन। मुस्हिलुन माने होते हैं दस्त आवर दवा। दस्त आवर दवा यानी दस्त लाने वाली दवा। कभी कभी आदमी जो है दस्त करने की वजह से परेशान होता है, और कभी ना होने की वजह से आदमी दस्त लाने के लिए दवा पीता है, खाता है, उसको दस्तावर दवा बोलते हैं, मुस्हिल बोलते हैं उसको। ऐसे ही बीमारियों में एक बीमारी है दुम्मलुन। दुम्मलुन, दुम्मलुन, दुम्मलुन के माने होते हैं फोड़ा। फोड़ा फुंसी आप देखते हैं जिसमें निकलता रहता फोड़ा, फोड़ी, फोड़ा, फुंसी लफ्ज़ जो हम बोलते हैं, इसकी जमा आती है दमामिलो, दमामीलो। इसकी दो जमा आती है दमामिलो, तो दमामिलो भी आती है और इसी में दमामील भी बोलते हैं, दो दो जमा। फोड़ा फुंसी बदन में अगर कहीं है तो उसको दुम्मल बोलते हैं। एक बीमारी आप उर्दू में जो बोलते हैं फालिज। फालिज ये अरबी लफ्ज़ है, ये आप सुनते होंगे। कभी कभी इंसान के किसी हिस्से में फालिज मार दे तो वो हिस्सा काम नहीं करता है, तो उसको कहते हैं फालिज। उर्दू में उसको आप माना अगर लिख लें, फालिज तो लफ्ज़ आप सुनते ही हैं, तो असल इसका माना क्या होता है,
بدन के किसी हिस्से का बेजान होना, बदन के किसी हिस्से का बेजान होना यानी हरकत ना करना। तो ये बीमारी है फालिज की, आप सुनते होंगे। फालिज उर्दू भी है और फिर अरबी में तो है ही है। हाँ, ताउन की एक बीमारी आप सुनते होंगे। ताउन जो है अभी तो ज़्यादा नहीं सुनने में आता, अलबत्ता पहले ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी। इसमें पूरा पूरा इलाका मुब्तला हो जाता था, बहुत सारे लोग जो है इसमें अपनी जान गंवा देते थे। तो ताउन ये जो बीमारी है, इसको जो है बहुत मशहूर ये बीमारी पहले मानी जाती थी। अभी ये चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं। इसकी जमा तवाईन आती है। तारीख़ में बहुत सारी बीमारियों में से ताउन की ऐसी बीमारी है जिसमें हज़ारों लोग मर जाते थे एक एक वक्त में। और इस्लामी दौरे हुकूमत में भी इस तरह के वाक़यात आए। मशहूर बीमारियों में इसका ज़िक्र आता है तारीख़ की किताबों में। अगर देखेंगे बहुत सारे सहाबा जो है ताउन की बीमारी में मुल्क शाम में उनकी वफ़ात हुई। उनमें से अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, जो कि फ़ौज के कमांडर थे। बीमारी फैली थी, वहाँ से नहीं भागे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बुलाया भी था, लेकिन उस बीमारी में वो भी जाँबर नहीं हो सके। उनकी भी वफ़ात इसी बीमारी में हुई। ऐसे एक बीमारी आती है हैज़ा। हैज़ा भी हम उर्दू में बोलते हैं, उर्दू में हैज़ा बोलते हैं और ये है अरबी का लफ्ज़। इसी को उर्दू में एक दूसरे लफ्ज़ से भी कहते हैं कालरा। हैज़ा को कालरा का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये हिंदी का लफ्ज़ है कालरा। तो ये बीमारी भी अब वो ज़्यादा नहीं पाई जाती, पहले ये बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती थी, इसमें भी लोग जो है अपनी जान गंवा देते थे। तो ये बहुत सारी बीमारियां जो बहुत ज़्यादा नुकसानात पहुंचाती थीं, अब ये कम हो रही हैं। इसी तरह जो है इदरारुन एक बीमारी होती है, आदमी को पेशाब बहुत आता है तो उसको कहते हैं इदरारुन। इदरारुन यानी आदमी को अगर जो है ज़्यादा पेशाब आए तो ज़्यादा पेशाब आने की बीमारी को इदरार बोलते हैं। ज़्यादा पेशाब आना यानी इंसान जो है कंट्रोल ना कर पाए, बार बार पेशाब आए, तो उसको कहते हैं इदरार। इदरार की बीमारी, जैसे इसहाल ज़्यादा जो अगर जो है पैखाना करता है, दस्त आता तो इसहाल बोलते हैं। और अगर उसी का उल्टा जो है अगर पेशाब के अंदर जो है उसकी ज़्यादती है तो उसको क्या कहते हैं इदरारुन। इदरार के माने बार बार पेशाब आना या ज़्यादा पेशाब आना। अब बीमारी के लिए जो हम बीमारी उर्दू में बोलते हैं, लेकिन इसके लिए जो लफ्ज़ है हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं मरज़ुन। मरज़ुन माने बीमारी, उर्दू में भी कहते हैं मर्ज़, जमा अमराज भी बोलते हैं। तो बीमारी के लिए ये लफ्ज़ जो है आप सुनते होंगे उर्दू में भी, इसकी जमा आती है अमराजुन। अमराजुन माने बीमारी, अमराज उर्दू में भी बोलते हैं। हाँ, इसी तरह एक लफ्ज़ और आता है बीमारी के लिए, उसे कहते हैं दाउन। दाउन के माने होते हैं बीमारी। बीमारी के लिए दो लफ्ज़ है दाउन। अच्छा, इसकी जमा जो आती है अदवाउन, इसकी जमा आएगी दाउन की अदवाउन, बीमारियां। तो बहुत सारी बीमारियां अगर हैं तो अदवाउन बोलते हैं उसको। और ये अब दा बीमारी को कहते हैं, और इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है दवा, हम जिसको इलाज कहते हैं दवा। तो दवा लफ्ज़ भी अरबी का लफ्ज़ है। अरबी में हम दवा जो कहते हैं उर्दू में, ये असल जो है अरबी का लफ्ज़ है। दवाउन माने दवा भी हम उर्दू में बोल सकते हैं, और दवा के माने होते हैं इलाज। आप जो है बीमारी दूर करने के लिए जो भी खाएंगे उसको दवा बोलते हैं। तो दवाउन की जमा आती है अदवियतुन। अदवियतुन, तो अदवियतुन ये जो है दवा की जमा है। हाँ, दवाएं हम जो खाते हैं उसमें कई तरह की दवाएं होती हैं। जैसे एक दवा टेबलेट की शक्ल में हम खाते हैं, तो हम एक लफ्ज़ पढ़े हब्बुन, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हब्बुन। तो हब्बुन लफ्ज़ जो है ये टेबलेट के लिए बोलते हैं। खुबू भी पहले भी दाना हम पढ़े हैं इसके लिए गले के अंदर। तो यहाँ हब्बुन जब बोलेंगे तो टेबलेट मुराद होता है, टेबलेट।
اردو میں جو ہے ٹیبلٹ بولیں گے، انگلش میں بھی ٹیبلٹ بولتے ہیں، اور عربی جب بتائیں گے تو اس کے لیے حبوب، حبن کی جمع حبوبن، حبن مانے دانہ بھی پڑھے ہیں اس سے پہلے غلہ کے اس میں، تو یہاں حبن جب دوا کے تعلق سے بات کریں گے تو وہاں حبن مانے ٹیبلٹ۔ اسی طرح ہاں ٹیبلٹ، اور اسی کو اردو میں گولی بھی بولتے ہیں، گول گول رہتا ہے عام طور پہ، اس لیے اس کا نام ہی گولی ہے، حبن گولی، ٹیبلٹ جمع حبوبن۔ ابھی دیکھیے اس سے پہلے آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا سمن، زہر کے تعلق سے، تو زہر کا لفظ پہلے گزر چکا لیکن کتاب میں اس لیے پھر سے لکھ رہے ہیں، سمن مانے زہر۔ اب یہ جانوروں کے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں ہم نے لکھا ہے تو اس میں سمن مانے زہر، اس کی جمع سمومن، پہلے گزر چکا ہے، آپ کو یاد ہو گیا پہلے ہی۔ ہاں دوا جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں زخم وغیرہ پہ جو لگاتے ہیں، ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں مرہم، تو مرہم لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن یہ ہے عربی کا لفظ، مرہمن مرہم۔ اب آج کل جو ہے آپ دیکھتے ہیں انگلش میں جو ہے دوائیں آتی ہیں تو اس کے اندر مختلف نام ہوتے ہیں، تو مرہم یہ اردو کا لفظ ہے، اس کو جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں زخم وغیرہ پہ لگانے کے لیے۔ ایسے ہی ایک دوا کرتے ہیں حقنہ بولتے ہیں، حقنتن ایک لفظ ہے جو دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مرہم جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، تو حقنہ ایک علاج ہے، اس کو اینما کہتے ہیں، شرمگاہ کے راستے سے دوا چڑھانا پہنچانا، تو یہ اینما کہتے ہیں اس کو اردو میں، اور اس کے مفہوم لکھ لیجئے، یہ علاج جو کرتے ہیں حقنہ کا تو اس میں یہ ہوتا ہے شرمگاہ کے راستے سے دوا چڑھانا، اس کو اینما بولتے ہیں، حقنہ عربی میں بولتے ہیں، اردو میں اینما بولتے ہیں، عربی میں حقنہ بولتے ہیں، دوا چڑھانا۔ تو یہ حقنہ ایک علاج کا طریقہ ہے، علاج کرتے ہیں۔ ایسے ہی حقنہ یہ جو ہے اندر دوا ڈالنے کے لیے جو طریقہ ہے اس کو حقنہ اینما بولتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو تکلیف دہ ہوتی ہے انسان کے جسم میں، حراقتن لفظ آتا ہے لیکن یہاں کتاب میں حراقتن دیا ہے، حالانکہ حراقتن میں لکھا چکا ہوں، حراقتن کہتے ہیں آتشی کشتی، یعنی جو کشتی چلتی ہے پیٹرول ڈیزل سے، تو آتشی کشتی کے لیے حراقتن، یہاں حراقتن لفظ ہے تو اس لیے ہے پہ پیش بنا لیجئے، کتاب میں حراقتن دیا، رے پہ تشدید ہٹا دیجئے، تو حراقتن یہ آبلہ۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ کوئی چیز جو ہے آدمی محنت کرتا ہے، ہاتھ سے پھاوڑا وغیرہ اٹھاتا ہے چلاتا ہے تو آبلہ چھالا پڑ جاتی ہے، آگ پہ اگر ہاتھ پڑ جائے یا گرم چیز پہ تو آبلہ جو ہے پڑ جاتا ہے، اس کو چھالا بولتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں حراقتن آتا ہے، آبلہ اور چھالا۔ تو یہ الفاظ بیماریوں کے ہیں، حراقتن جمع حراقاتن، اس کی جمع آئے گی حراقاتن۔ تو یہ بیماریوں کے تعلق سے بہت سارے الفاظ آپ کو میں نے بتائے، اور یہ ایسی بیماریاں جو عام طور پہ کتابوں میں یا جو کہیں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ بیماریاں لوگوں کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو اب ہم جو ہے جو الفاظ یہ پڑھ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک مرتبہ ہم دہرا لیں، ان کا اعادہ کر لیں تاکہ ہم بھولنے نہ پائیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ روزمرہ کی زندگی میں جن الفاظ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے استعمال کرنے کی، تو ان میں سے یہ سارے الفاظ آپ کے آ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں اور نئے الفاظ جو ہے دوسرے ٹاپک میں ہم شروع کریں گے اگلا سبق، تو اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان الفاظ کو یاد کر لیجئے، جو بھی الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں اس میں سے کوئی لفظ چھوٹنے نہ پائے، اگر کچھ الفاظ نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں یا کہیں چھوٹ گئے ہیں تو ان کو آپ پوچھ سکتے ہیں کبھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پہلے آپ دیکھ لیجئے بیماریوں کے تعلق سے جو الفاظ ابھی میں نے لکھائے ہیں، تو ان کو آپ غور سے سنیے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیے، اور دوہرا کر کے پھر ان الفاظ کو جو پہلے گزر چکے ہیں اور ان الفاظ کو بھی
याद करके आइए। इंशाअल्लाह आइंदा जो है हम और भी अल्फाज दूसरे मौजू से मुतालिक लिखाएंगे। अभी तो ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ या किसी जानदार के मुतालिक अल्फाज थे, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आइंदा जो हम अल्फाज पढ़ेंगे तो उसमें हम ऐसे अल्फाज पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक़ किसी ज़ात या किसी जो है जानदार से नहीं होगा। तो यहाँ देखिए पहले नंबर पे क्या है, बीमारियों में वजाउन दर्द, तकलीफ जमा औजाउन, सुदाउन दर्द सर, और इसे हुम्मा माने बुखार जमा हुम्मयातुन। ऐसे ज़ुकामुन, ज़ुकामुन माने ज़ुकाम, और सुआलुन खांसी, ये नया लफ्ज़ है सुआल खांसी। हालांकि इसके मुतालिक आप सुनते हो सुआलिन दवा मिलती है मेडिकल पे, आप देखें खांसी के लिए, तो ये भी मशहूर है, उर्दू में भी लोग सुनते रहते हैं। वरमुन माने सूजन जमा औराम, मैंने पहले बताया वरम आना ये उर्दू का लफ्ज़ है। जरहुन ज़ख्म जमा जुरूहुन, हुरकतुन सोजिश जलन, जिसमें कहीं जलन महसूस हो कहते हैं उसको हुरकतुन बोलते हैं अरबी में। ऐसे जरहुन ज़ख्म जमा जुरूहुन, हुरकतुन सोजिश जलन। जोदरियुन, जोदरियुन ये लफ्ज़ जो है चेचक के लिए बोलते हैं। और हुस्बतुन एक लफ्ज़ आता है खसरा, छोटी चेचक होती है, बहुत बारीक दाने होते हैं जिस्म पर, इसको कहते हैं हुस्बातुन, इसकी जमा। इसहालुन माने दस्त आना, और अगर किसी को दस्त ना आए तो उसके लिए दवा खानी पड़ती है, उसको कहते हैं मुस्हिलुन। मुस्हिलुन माने दस्त आवर दवा। और फोड़ा फुंसी अगर जिस्म में है कहीं तो उसके लिए अरबी में बोलते हैं दुम्मलुन, फोड़ा जमा दमा मिलो दमा मीलो। ऐसे ही फालिज आप सुनते हैं उर्दू में, इंसान के जिस्म में कभी कभी कुछ हिस्से पे जो है फालिज का अटैक हो जाता तो वो हरकत नहीं करता, तो बदन के किसी हिस्से का बेजान होना, बेहिस्सो हरकत हो जाने को फालिज बोलते हैं। ऐसे ताउन, मैंने पहले बताया ये बीमारी जो है पहले होती थी, अभी ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए ये बीमारियां जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। और हैज़ा का जैसे लफ्ज़ है उर्दू में भी आप सुनते हैं हैज़ा, इसी को कालरा भी बोलते हैं। ऐसे इदरारुन, इदरार कहते हैं पेशाब अगर बार बार आए, बहुत ज़्यादा आए तो उसको इदरार बोलते हैं। ऐसे मरदुन, मरदुन जमा अमराजुन बीमारी मरज़, तो बीमारी और मर्ज़ ये हम उर्दू में भी बोलते हैं, इसलिए हम इसमें मेहनत नहीं करना याद करने में। अमराज भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। दाउन कहते हैं बीमारी को, ये लफ्ज़ जो है मर्ज़ के लिए दाउन लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है। हदीस में आता है कि मा अंज़लल्लाहु बिही दान इल्ला अंज़लल्लाहु बिही शिफा, कि अल्लाह ने दुनिया में जितनी भी बीमारियां नाजिल की हैं उनकी शिफा भी अल्लाह ने नाजिल कर दिया है। तो हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया। अलबत्ता ये अलग बात है कभी कभी डॉक्टर नहीं पता पाते हैं, टाइम लग जाता है तहकीक करने में। जैसे आप कोरोना के टाइम में आपने देखा कि 2 साल लग गए जो है लोगों को दवा बनाने में, उसके लिए कारगर दवा नहीं मिल रही थी। तो दवा के लिए अरबी लफ्ज़ जो है दवा ही है और इसकी जमा अद्वियतुन आती है। दवाउन दवा, इलाज जमा अद्वियतुन, हब्बुन टेबलेट गोली जमा हुबूबुन। ऐसे ही सम्मुन जहर जमा सुमूमुन, मरहमुन मरहम, और हुक्नतुन इनमा शर्मगाह के रास्ते से दवा चढ़ाना। और एक आखिरी लफ्ज़ है हुराकतुन आबला छाला जमा हुराकातुन। तो बच्चों ये अल्फाज थे जो मैंने आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, उनको हमने आपके सामने लिखा दिया है और माशाल्लाह आप याद कर रहे हैं। तो आप इन अल्फाज को गौर से पढ़िए, याद कीजिए और इस्तेमाल करते रहिए। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अरबी बोलना लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। और इंशाल्लाह हम अगले दर्स में कुछ और नए अल्फाज जो है ये जो अल्फाज लिखे हैं इनसे अलग अल्फाज हम लिखाएंगे, जिनको हम इन अल्फाज के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे या ज़रूरत पर जो है हम बोल सकते हैं अरबी जिन अल्फाज की मदद से। तो इंशाल्लाह उसका सिलसिला बाद में दूसरे दर्स में हम शुरू करेंगे। और चूँकि अब हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है इसलिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।